Welcome everyone. So in the last lecture we have discussed structure and we have seen the implementation of structure. Okay. So today we'll start with array of structure and nested structure, right? So if I give you a quick recall what exactly is a structure, so that is a collection of heterogeneous kind of data, right? तो अगर हमारे पास we have different type of data, then we go for structure, right? Now what we do in a structure, first of all we define the structure and then we declare the variables of a structure and then only we can store the data, right? तो हमारे पास तीन स्टेप होते हैं. पहला स्टेप हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड देन we'll store the data with the help of either dot operator or arrow operator, right? तो हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का. नाउ अब हमारे पास सपोज दो स्टूडेंट थे, सो व्हाट वी हैव डन, हमने दो वेरिएबल लिए थे S1 S2 इफ यू रिमेंबर, राइट? नाउ इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि we can go for variables, right? Now if I take example, suppose मैं मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है. So obviously in that case I cannot go for I cannot take 100 different variables, right? So it would be a tedious task, it would be a complex task, right? So what I have in that case, I can create the array. Okay, so when we are having मल्टीपल डेटा है हमारे पास और उस डेटा का बेसिकली टाइप क्या है, स्ट्रक्चर है. ऑल द डेटा इज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप, then we can create a array of structure, right? Because it would be, it would be good to use array rather than having n different variables. Like what is the syntax for that? सबसे पहले struct, then structure name as usual, ये क्या होगा, type होगा. Then we have array name and square bracket में array का size. As we already know, the size has to be a constant value, right? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, सो सपोज हमें 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो हमने एक एरे क्रिएट करेंगे ऑफ 100 स्टूडेंट्स. सो वील राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन एरे का नाम क्या हो गया, एस, एंड साइज हो गया 100. तो यहाँ पे क्या होगा, वील हैव पहला जो स्टूडेंट होगा वील डिनोट इट विद एस ऑफ 0, देन सेकंड स्टूडेंट एस ऑफ 1 एंड सो ऑन, and the last student would be s of 99. Obviously if you are having more student, then you can always increase the size, right? So you can solve this problem. Before that, let us have a look at one of the implementation of this student problem only, right? तो यहाँ पे अगर आप देखो, what I have done basically, I have created a structure. Okay, इसमें दो मेंबर्स मैंने लिए हैं, एक नेम और दूसरा एज. तो मैंने आपको बताया था पहले भी, यू कैन ऑलवेज increase the number of members, right? Now what we have done, we have created a array. उसका साइज मैंने 200 लिया है, दैट इज मैक्सिमम आई कैन स्टोर इन दिस एरे एस. आई कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ 200 स्टूडेंट, अप टू 200 स्टूडेंट्स, राइट? देन लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल आई, एंड एन में मैं क्या लूँगा, एन में मैं लूँगा कितने स्टूडेंट हैं. ओके, सो ऑब्वियसली आई cannot store data of to 200 student always. Like it may be possible, suppose I am having, let's say, 100 student or 110 or 150, so that is why I have taken this variable n. तो n की वैल्यू कौन बताएगा, यूजर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से पूछा कितने स्टूडेंट हैं. सो इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ n. यूजर ने जितने स्टूडेंट्स बताए उसकी वैल्यू किस में आ गई, n में. अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, राइट? तो लूप ऑब्वियसली एज यूजुअल इन एरे, लाइक लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस.
अब सपोज मैं पहले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पहला स्टूडेंट क्या होगा, एस ऑफ जीरो। और अगर मुझे एस ऑफ जीरो का नेम चाहिए, सो व्हाट आई विल राइट, एस ऑफ जीरो डॉट नेम। ओके, then second student would be s of 1 dot name, s of 2 dot name, and so on. So in general what I can do, I can write like s of I dot name. अब जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होगी, लाइक पहले i की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में जीरो है, तो एस ऑफ जीरो डॉट नेम आ गया, यानी पहले स्टूडेंट का नाम। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में वन हो जाएगी तो एस ऑफ वन डॉट नेम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो, फिर आई की वैल्यू जब टू होगी तो एस ऑफ टू डॉट नेम हो जाएगा। तो इस तरह से लूप चलता रहेगा, कहाँ तक, इट विल गो अप टू n माइनस वन। सिमिलरली मैं जो है एज को इनपुट करा रहा हूँ, अगेन आई विल राइट एस ऑफ आई, दैट इज द एरे एलिमेंट डॉट मेंबर नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर का एरे पहले मैं ले रहा हूँ एस ऑफ आई से, और डॉट लगा के मेंबर जो भी मुझे इनपुट कराना है। ओके, later what I can do any kind of processing over there, जो भी मुझे एनालिसिस करना है, whatever I want to do I can do, right? ओके, सो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट करवा के देखा है। तो अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सो व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज सेइंग फॉर इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो लेट्स से मैंने कहा टू, सो इनपुट नेम एंड एज ऑफ स्टूडेंट वन, लेट्स से नेम इज लाइक ABC, एज इज लाइक 25, student 2 like name is XYZ, age is let's say 24. So this is how it is printing, student 1 name ABC, right, age 25, XYZ, age 24. So you can go maximum up to how many student, 200 students, right? So this is how I basically what I have done, I have created the array of structure, right? Okay, तो ये प्रॉब्लम आप खुद करके देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यू जस्ट हैव टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर जिसमें आपके तीन मेंबर्स होंगे, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली कॉलेज, उसमें तीन मेंबर होंगे, नेम ऑफ कॉलेज, देन सिटी एंड प्लेसमेंट परसेंटेज। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज चेंज द मेंबर्स। नेम ऑफ कॉलेज अगेन इट वुड बी अ स्ट्रिंग, city would be a string, and placement percentage you can take it as integer, right? So this is this all information you have to input for 100 colleges. So obviously यहाँ पे जो आप एरे क्रिएट करोगे उसका साइज आपको कितना लेना पड़ेगा, 100। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, जब आप प्रिंट कराने जाएंगे तो सिंपली आपको एक कंडीशन लगानी होगी कि आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेज का नाम प्रिंट कराना है जिनकी जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो मोर देन 80% है। सो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, लाइक हियर यू कैन से ओके इफ लेट्स से सी इज द एरे, तो सी ऑफ आई डॉट लेट्स से पीपी में ले रहा हूँ प्लेसमेंट परसेंटेज, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 80, तो सी ऑफ आई में क्या होगा, जब आप लूप चलाओगे आई इक्वल्स टू जीरो से लेके कहाँ तक, 99 तक, तो एक तरह से सी ऑफ आई डॉट पी पी में यू विल कंसिडर ऑल द प्लेसमेंट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, राइट। जीरो पे पहला कॉलेज आ गया, वन पे दूसरा, टू पे तीसरा, एंड सो ऑन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू प्रिंट नेम ऑफ द कॉलेज, सो यू हैव टू प्रिंट सी ऑफ आई, यानी जिस कॉलेज की प्लेसमेंट परसेंटेज 80 से ज़्यादा है उसका नाम प्रिंट करा लेंगे, तो सी ऑफ आई डॉट नेम यू हैव टू प्रिंट। ओके, सो डू दिस प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो देखो नेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने नेस्टेड इफ में भी देखा था, सो दैट इज व्हाट इफ इनसाइड इफ, लाइक वी डू हैव नेस्टेड लूप, वी हैव नेस्टेड स्विच। ओके, सिमिलरली वी हैव नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर। ओके, तो आप ये कह सकते हो whenever you know whenever we define a structure as a member of another structure, जब कोई एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर बन जाए, then that is known as nesting or nested structure. Okay, so here you can see by the definition, nested structure is structure within structure.
So this is what you are doing. One structure you are taking as the member of another structure. ठीक है, सपोज ये हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मुझे एक स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें दो मेंबर लेने हैं मुझे, एक नेम और दूसरा डेट ऑफ बर्थ. अब अगर आप ध्यान दो तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक डेट होगी, तो डेट इज इटसेल्फ अ स्ट्रक्चर. डेट में क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में क्या हो सकता है, डेट हो सकती है, राइट. डेट या डे, वट एवर यू कॉल इट, डे, लेट अस कॉल इट डे. देन इट मे हैव मंथ and it may have year. Like if I say, okay, my date of birth is, let's say, 1/1/2000. So this one is the day, right? This one is the indicating the month, and this is indicating the year. Okay. तो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले डेट ऑफ बर्थ का एक एक डेट का मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, राइट. एंड व्हाट आई हैव टेकन थ्री मेंबर्स देयर, डेट, मंथ एंड ईयर. let us call it day, है ना. Let us take it as not date, let us take it as day. Okay, let us take it as day. So day, month and year, that is a structure. Now if I make this structure as a member of another structure, अब इस स्ट्रक्चर को मैं दूसरे स्ट्रक्चर स्टूडेंट का मेंबर बना रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा नेस्टिंग, राइट. हियर यू कैन सी, ये एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने एक मेंबर लिया है जो कि ये खुद एक स्ट्रक्चर है. So this date structure is a member of another structure student. So that is what nesting, right? तो nesting पे भी हम एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल. I'm already having the code, so I am opening it. Right. So here what I have done, I have created a structure. यहाँ पे आप ध्यान देना डेफिनेशन पे, और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक मैंने मेंबर लिया है नेम, है ना, स्टूडेंट के अंदर. और जो दूसरा मेंबर है डीओबी, वो खुद एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने लिया है डे, मंथ एंड ईयर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे स्ट्रक्चर का मेंबर है. तो ये क्या हो गया, दिस इज नेस्टिंग, राइट. उसके बाद कुछ नहीं करना, सेम थिंग. द ओनली थिंग दैट यू नो, whenever we access the member of a nested structure, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है. यहाँ पे आप ध्यान दो what we have done. पहले हमने एरे लिखा, एरे का एलिमेंट लिया एस ऑफ आई डॉट डी. नाउ डी इज व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू टेक द डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डी, यानी वो एक इनर स्ट्रक्चर जो है पहले आप उसे एक्सेस करोगे. तो एस ऑफ आई डॉट डी, देन यू विल एक्सेस द मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, राइट. सो डी इज व्हाट, डी बेसिकली इंडिकेट कर रहा है डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपने डॉट लगा के उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको क्या चाहिए, डे. जैसे यहाँ पे देखो डी डॉट मंथ लिखा है, यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है मंथ. तो यहाँ पे आपको जब भी आप नेस्टिंग, जैसे दिस इज वन लेवल ऑफ नेस्टिंग, जो जब आप वन लेवल ऑफ नेस्टिंग करते हो तो आपको दो डॉट लगाने पड़ेंगे. अगर आप टू लेवल ऑफ नेस्टिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज थ्री डॉट्स, राइट. सो यू कैन डू नेस्टिंग अप टू एनी लेवल. ओके. नाउ if I execute it, rest everything is same. ओके. सिर्फ आपको यही चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे दो डॉट लगेंगे. पहले आप इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस करोगे and then you will access the member of the inner structure, right. So if I execute it, let's say it is saying to student name, पहले का नाम ABC. अब ये क्या कह रहा है, डे, मंथ एंड ईयर इन डेट ऑफ बर्थ. सो लेट्स से 1/1/2000. अब ये दूसरे की बात कर रहा है, सो लेट अस टेक इट एज XYZ. उसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, सो लेट्स से 2/2/2000.
2002. So this is how it is accessing student 1 name और date of birth आ गई और student 2 name and date of birth, right? So you can see in date of birth we are printing three things. One is day, month and year, right? Okay, so that is all about array of structure and nested structure. Thank you so much.